This is one thing that I envy about your generation. Yes, kids nowadays are blessed because they have such a high speed internet. When I was a kid of your age studying in 10th standard, the internet in India was very, very slow. Leave alone calling people, sending an email, or rather setting up an email would take a day at times because the internet was so slow and interrupting. So what made the difference? So the concept that we are going to study today was the game changer. This is laying down of fiber optic cables that has done marvels in changing the speed of data exponentially, because back then data was transferred by electrical signals, and today data is transferred using fiber optic cables. Then the speed of data that was going from one place to other place was pretty low as compared to what we have today, because today the data is traveling at speed of light, that is 3 times 10 to the power of 8 meters per second. That is the game changer. So learners, today we are going to talk about critical angle and total internal reflection. So let us see what this is. This is one of the most important applications of refraction of light. So let us go ahead and see what critical angle is and what total internal reflection is. So now let's talk about what happens when the light goes from a denser medium to a rarer medium. So here we have a denser medium, and here so the incident ray is going from glass to air. Again, very crucial. Up until now, most of the things that we were discussing were when the ray were going from air to glass. Now they are going from glass to air. Now, since the ray is going from glass to air, the angle of incidence is going to be smaller than the angle of refraction. Refraction is going to be larger. Now, when the angle of incidence is smaller, then it is smaller than the critical angle. Critical angle is a particular angle where the angle of refraction becomes 90 degrees. So in this case, what is going to happen? So a partial ray would get refracted and would go towards B, and a partial ray would get reflected and go towards C. So you see the intensity of the light gets divided into two parts. One is getting refracted and one is getting reflected. Now, what happens when this angle of incidence is equal to this critical angle? Now, in the later part, we will be seeing what this critical angle is. So, if angle of incidence is equal to the critical angle, then the angle of incidence is equal to the critical angle. So, it's equal to C. We are going from glass to air. Then the angle of refraction becomes 90 degrees. So, we can take this chance to understand what critical angle is. So, it is the angle of incidence at which the angle of refraction would be equal to 90 degrees. Okay. So, first case, half of it would get refracted, half of it would get reflected. In the second case, a part is going to get reflected and some part is going to get refracted towards point B, which is going to be in the direction parallel to the surface of the body. So here in this case it is the glass slab. Now, what happens if we increase this angle of incidence further? So if the angle of incidence is greater than the critical angle of the particular material, particular pair of material, then there would be no refraction. यहाँ पर light जाएगा ही नहीं, ये वाली side में जाएगा ही नहीं. All of it would get reflected inwards. कहाँ पर? अंदर आ जाएगा वो, तो surface के अंदर आ जाएगा. So this phenomena in which the light does not get refracted at all but gets reflected inwards is called total internal reflection. तो अभी आगे देखेंगे. पहली चीज है critical angle. Critical angle is defined as the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degrees. अभी relationship कैसा रहेगा? तो we have say glass और air का example ले लेते अपन. तो we have for a glass air pair we have mu is equal to, that is refractive index is equal to sin I upon sin R. Now in this case my I is equal to
C and my R is equal to 90 degrees. So this is happening where? This is happening at the critical angle. So we'll get G mu A is equal to sin C upon sin 90. But according to trigonometry, sin 90 is equal to 1. So I can say that G mu A is equal to sin C. So the refractive index of glass with respect to air is A mu G. This was refractive index of air with respect to glass. So अगर उल्टा लेंगे glass with respect to air लेंगे तो it would be reciprocal of the G mu A. तो it would be 1 upon sin C. But we know that reciprocal of sin C is equal to cosec C. तो अपन directly ये आंसर निकाल सकते हैं if they are asking you for the critical angle. तो critical angle, cosec of critical angle C would be equal to A mu G, and angle sin of angle C would be equal to G mu A. ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. Now आगे है क्रिटिकल एंगल ऑफ सम सब्सटेंसेस. तो कुछ चीज़ों का उन्होंने दिया है. तो वाटर का क्रिटिकल एंगल है 48 डिग्रीज, 45 मिनट्स, ऑलमोस्ट 49 डिग्रीज है. तो अगर लाइट इंसिडेंट होती है इससे ज़्यादा वाले एंगल पे, देन वी एंड अप गेटिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ना टर्पेंटाइन का है तो थोड़ा कम है, ग्लास का है वो और कम है, फ्लिंट ग्लास इज इवन लेसर, and then we have diamond. Diamond ka is almost equal to half of that of water. That's the reason a lot of light gets totally reflected inside the diamond, making it shine. So ये अभी physics, according to physics ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि diamonds don't shine in the darkness. Diamonds shine in the darkness when light falls on them. तो अगर लाइट फॉल नहीं होगी तो डायमंड चमकेगा नहीं. तो डायमंड को चमकने के लिए इट नीड्स सम लाइट. एंड व्हाई डज इट शाइन? बिकॉज वो जो मेरा डायमंड है, अगर मेरा डायमंड ऐसा रहेगा, लेट मी ड्रॉ क्रूड डायमंड हियर फॉर यू. तो इसमें अगर रे ऑफ लाइट जाएगा तो इट इज गोइंग टू गेट टोटली रिफ्लेक्टेड एंड बाउंस बैक एंड फ्रंट इनसाइड द डायमंड, मेकिंग इट काइंड ऑफ ग्लो, or giving it that glowy appearance. So let's go ahead. Now factors affecting the critical angle, it depends on color of light. बहुत important है, color of light पे critical angle depend करेगा. Critical angle of a pair of media is least for the violet light, मतलब कम violet light के लिए है, and it is maximum for the red light. So the critical angle increases with increase in wavelength. एंड सेकेंड चीज जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है दैट इज द टेम्परेचर. इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्रिटिकल एंगल. ओके, सो नाउ वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो लेट अस कंसिडर अ रे ऑफ लाइट. फर्स्ट दिस इज इंसिडेंट रे. वी आर गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. तो पूरा का पूरा रे जो है वो टोटली इंसिडेंट हो गया, सॉरी टोटली रिफ्लेक्ट हो गया. तो पूरा का पूरा इंसिडेंट रे इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनवर्ड्स एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई. ये दोनों एंगल सेम ही रहेंगे. यहाँ पर कंडीशन क्या नेसेसरी है? दैट आई नीड्स टू बी ग्रेटर देन सी. इफ आई इज लेस देन सी तो ये फिनोमेना हैपन ही नहीं होगा. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ अ रेरर मीडियम एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया. तो अभी ये ग्लास एयर है तो ये कितना चाहिए? ये 50 डिग्रीज के ऊपर चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी ये वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा. द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ एसेंशियल कंडीशंस क्या है? वी नीड टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर. डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाएंगे, पहली चीज. एंड दूसरी चीज है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल जितना ही रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, द लाइट वुड जस्ट पास थ्रू. आगे है तो अभी अपन अलग अलग रेज देखते हैं. तो ये पहला वाला रे इन्होंने दिया है वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ इज लेस देन क्रिटिकल एंगल. अब ये दूसरा वाला रे दिया है वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. तो ये जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और तीसरी केस में ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट इनवर्ड्स.
तो b dash is the total internally reflected ray. तो let's go ahead with total internal reflecting prisms. Prisms are used a lot when we talk about total internal reflection. तो कैसे होगा? तो ये पहला वाला प्रिज्म है, that is a 45-45-90 degrees prism. In the previous class, we had discussed about 3 different kind of prisms. We had a 60-60-60 prism, a 45-45-90 and a 30-60-90 prism. तो ये जो मेरा 45-90-45 prism है, it's also called as a right angled isosceles prism. ऐसा क्यों? बिकॉज दोनों साइड सेम होगी, बिकॉज द एंगल्स आर इक्वल. तो ये एक अगर ट्राइंगल देखेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करेगा. सो इट्स कॉल्ड अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बिकॉज द लाइट इंसिडेंटेड नॉर्मली ऑन एनी ऑफ इट्स फेसेस सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द प्रिज्म. इसमें कुछ एक्सेप्शंस है वो जो अपन बाद में देखेंगे. I think yesterday in the previous video we've already seen the exception, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं. Now, to deviate the ray of light by 90 degrees. तो if the ray falls on either of the smaller faces, जो छोटे वाले हैं, hypotenuse छोड़ के जो दो है, they are making an angle of 90 degrees उनके ऊपर. तो if the ray falls on it, it is going to make a total internal reflection and get deviated through a 90 degrees. Okay? इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है पेरिस्कोप्स में. अभी अब तक आपको पेरिस्कोप सिखाए गए थे. तो पेरिस्कोप्स में क्या सिखाया गया था कि एक मिरर यहाँ पर रहता है एट ए एंड एक मिरर यहाँ पर रहता है एट ए डैश. पर एक्चुअल में वी डोंट यूज मिरर्स इन पेरिस्कोप्स. वी जनरली यूज शिप वगैरह में जो पेरिस्कोप्स यूज होते हैं, सबमरीन्स वगैरह में, उनमें जनरली प्रिज्म्स यूज होते हैं. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई भी लाइट डिमिनिश नहीं होती. इट इज ऑल द लाइट गोज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. जब भी मिरर यूज होगा तो अ पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू गेट रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड. तो जो इमेज मिलती है वो हमेशा ब्राइट इमेज मिलती है. इस वजह से वी प्रेफर प्रिज्म्स ओवर मिरर्स. दूसरी चीज है मिरर्स डू गेट एज दे एज, जैसे जैसे उनका मतलब एज दे गेट ओल्ड, तो मिरर जो है उनका सिल्वरिंग कम हो जाता है और ब्राइटनेस और भी खराब, इमेज और भी खराब दिखने लगती है. नाउ सेकंड इज वी यूज द सेम प्रिज्म बट दिस टाइम वी गेट इट deviated by 180 degrees. Now in this case we get the incident ray deviated by 180 degrees. तो ये predominantly कहाँ पर यूज होगा? तो ये predominantly यूज होगा इन बाइनोक्यूलर्स. तो यहाँ पर कैसे यूज होता है देखिए आप. नाउ दिस टाइम द रेज आर इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर फेस, दैट इज जो हाइपोथेनस वाला फेस है उसके ऊपर, एंड वी गेट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज लाइक दिस. तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगा एंड देन इट वुड कम हियर, इट वुड बाउंस रिफ्लेक्ट अगेन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा. अब ये ऐसा क्यों है? तो बोथ ऑफ द केसेस द एंगल्स आर लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल. यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है. ओके, तो आगे देखेंगे. तो ये बाइनोक्यूलर में ऐसा यूज होता है. तो ये एक प्रिज्म यहाँ पर है, ये एक प्रिज्म यहाँ पर है, और ये प्रिज्म्स जो है वो अब ये काम क्या करेगा, ऐसे क्यों करना है अपने को? तो इफ यू लुक एट इट, इट हैज इंक्रीज्ड द लेंथ ऑफ द रे सब्सटैंशियली. और अगर रे का लेंथ बढ़ेगा तो मेरा आई पीस और मेरे ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस भी बढ़ेगा. नाउ आई कैन प्रिटी मच चेंज द पोजिशन ऑफ दीज आई पीसेस. इनको आगे पीछे कर सकता हूँ. तो एक स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है वो ये वाला, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट ओनली वंस, यहाँ से यहाँ तक होता अगर प्रिज्म नहीं होते, तो उसकी जगह पर ये 1 और 2 मतलब लगभग, सो इफ यू इवन कंसिडर इट बाय से 2 सेंटीमीटर्स, तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर लेंथ तो ऐसे ही इसने बढ़ा दिया यहाँ से, ये दोनों की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वंस एंड दिस 2, एंड देन इसकी वजह से भी लेंथ बढ़ेगा और इसकी वजह से भी लेंथ बढ़ेगा. अब आप बोलोगे कि ये लेंथ बढ़ेगा तो उससे फायदा क्या होगा? एब्सोल्युटली इट वुड हेल्प, बिकॉज देन आई कैन यूज अ लार्जर ऑब्जेक्टिव. बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव यूज करूंगा तो उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा तो इमेज फॉर्म भी दूर पे होगा.
और वेन एवर वी हैव लाइट रेज तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। सो इसका लेंथ जो है वो डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर हो जाएगा। सो और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट मेजर हो जाएगा। सो वी कैन गेट अ बेटर इमेज और वो बाइनोक्यूलर्स को अपन काफ़ी कॉम्पैक्ट भी बना सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज a total internal reflection through 45 degree prism। ये किस लिए है? तो ये इमेज को उल्टा करने के लिए है, टू इरेक्ट, इसको बोलते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पिछले वाले की तरह हो रहा है, पर पिछला वाला ये साइड से आ रहा था, ये साइड से रे आ रहे थे, इस वाले में ये साइड से आ रहे हैं एट एन एंगल, और वो बाउंस बैक हो रहा है ये वाले सरफेस पे। दिस वाज आल्सो बाउंसिंग बैक ऑन द सॉरी, पिछला वाला जो था वो इस साइड से आ रहा था ऐसे, सो इट वाज बाउंसिंग बैक ऑन दिस सरफेस, दिस पार्ट ऑफ द सरफेस, ये वाले पे, ये वाला जो है अंदर से बाउंस बैक हो रहा है एंड वी गेट अ इन्वर्टेड इमेज। अब ये इन्वर्टेड ये वाले प्रिज्म्स जो थे जनरली प्रोजेक्टर्स में यूज होते थे। नाउ दिस इज अ स्लाइड प्रोजेक्टर। ये अपने नॉर्मल वाले प्रोजेक्टर जो डिजिटल प्रोजेक्टर होते हैं वैसा नहीं होता, इधर स्लाइड्स होती है छोटी छोटी और इधर एक पीछे लैंप होता है और एक प्रिज्म होता है, तो जो उस स्लाइड को इरेक्ट करेगा, मतलब स्लाइड हमेशा से उल्टी रहेगी और अपने को जो फाइनल आउटपुट दिखेगा वो सीधा दिखेगा उसका। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्रीज। अभी ये 60 डिग्रीज वाला प्रिज्म है मेरा, 60 वाला है, 45 90 वाला नहीं है। तो इफ द लाइट फॉल्स on one of the edges, around one of the edges at 90 degrees, तो angles देखो कैसे बनेंगे। तो when it falls it comes here, since this is 90, this is 60, this angle needs to be 30। अगर ये मेरा 30 है और ये मेरा परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया, और सेम वे ये वाला भी 60 ही हो जाएगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, बिकॉज 60 प्लस 60 प्लस 60 इज 180 डिग्रीज। तो ये केस में अपने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा इन अ इक्विलैटरल प्रिज्म पर। और ये अगर 30 90 60 डिग्रीज का प्रिज्म होगा तो उसमें भी एक पर्टिकुलर केस में अपने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू फिगर आउट कि हाउ कब वो होगा कब वो नहीं होगा। तो ये जो पहला वाला है ये डायग्राम्स है दिए गए डायरेक्टली, तो इनको अपन डिकोड कैसे करेंगे, ये 60 कैसे आया। तो ये तो मेरा 90 है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। अभी ये 90 परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये 60 हो गया, 30 प्लस 90 इज 60। सेम वेज यहाँ पर भी होगा, तो ये 30 है मेरा, अगर ये 60 है तो ये साइड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, तो ये भी 60 हो गया। सिंस ये मेरा 60 है एंड दीज टू आर राइट एंगल्ड, ये 90 डिग्रीज है मेरा, तो इस वजह से ये वाला भी 60 हो जाएगा सॉरी ये वाला भी 30 हो जाएगा, बाकी 60 हो जाएगा, बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है दिस इज गोइंग टू बी मेकिंग दिस एंगल एज, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 क्यों हो जाएगा, 60 प्लस 30, ये तो ऑलरेडी है मेरे पास 150, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 30 रह गया। ओके, तो ये 30 रह गया, तो सिंस दिस इज 30, ये 60 है, तो ये अंदर वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 120। तो 30 मेरे पास था, ये 120 हो गया, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। दिस इज हाउ दीज एंगल्स आर टू बी डिकोडेड। तो आप अगर कभी भी देखोगे तो बेसिक ट्रायंगल्स यूज करेंगे अपन, ट्रायंगल्स और उनकी एडिशन का प्रॉपर्टी। सो दिस डिविएशन थ्रू लेस देन 60 डिग्रीज बाय 30 90 60 डिग्री प्रिज्म। तो डिविएशन कितना है, 60 डिग्री से कम है मेरा। नॉन अकरेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, तो इफ वी आर तो ये वाले में जो इफ यू सी, तो इट वाज इंसिडेंटेड ऑन द फेस ऑपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल। अभी यहाँ पर वेन एवर वी इंसिडेंटेड ऑन एनी अदर, तो अगर ये वाले फेस पे करूँगा
विच इज ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज, या फिर ये वाले फेस पे विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज, तो ये दोनों केसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और ये क्यों नहीं होगा, कैसे पता चल रहा है मेरा? बिकॉज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस इज गोइंग टू बी लेस देन मेरा क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास विच इज 42 डिग्रीज. तो 42 डिग्रीज से कम है, इसलिए वो नहीं हो रहा है. पहले वाले में देखा था वो 45, 90 में देखा था, दोनों जगह पर 45 डिग्रीज एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस वजह से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था. ये वाली जगह पे वो नहीं होगा ना. आगे देखेंगे तो वी हैव एक्सेप्शन. इसमें भी एक्सेप्शन है 30, 60, 90 में. तो इफ वी आर इंसिडेंटिंग इट वेरी क्लोज टू द 60 वाला, ये जो 30, 60, 90 का प्रिज्म है, 60 वाले के वेरी क्लोज अगर अपन उसको डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो इन दैट केस ना ऑब्वियसली दिस लाइन इज गोइंग टू बिकम 90. तो ये वाला एंगल 30 डिग्रीज हो जाएगा. और ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, ये दिस इज 30 डिग्रीज, और ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्रीज ही बनेगा. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 60 डिग्रीज बन रहा है, विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्रीज. इन दिस केस ओनली वी आर गोइंग टू गेट अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मुझे कैसे पता चला कि ये 60 डिग्री होगा? तो बस ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा. ये 30 तो ये परपेंडिकुलर है, तो 30 प्लस ये 90, ये मेरा ये एंगल 90 है, तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, इसलिए ये 60 बन गया. I hope you understood this. So let's go ahead with the next part, wherein we have total internal reflecting prisms in place of mirrors. अभी हम मिरर्स में क्यों इस्तेमाल करते हैं, मिरर की जगह पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? इन बाइनोक्यूलर्स, इन कैमराज, बिकॉज मेरा 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. 100% सबसे इंपॉर्टेंट बात है. फर्दर द ब्राइटनेस ऑफ इमेज फॉर्म्ड by total reflecting prism always remains unchanged, while due to deterioration of silvering, ये प्लेन मिरर जो मेरे है उसमें सिल्वरिंग का जो डिटोरिएशन हो जाएगा उसमें, उस वजह से वो थोड़ा फेंट हो जाता है इमेज विथ टाइम. डिस्टिंक्शंस क्या है दोनों में? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट टेक्स प्लेस only when light passes from a denser medium to a rarer medium. A reflection from a plane mirror कुछ फर्क नहीं पड़ता. We need a mirror for it. Then entire light is reflected, only a part is reflected, then the part is refracted or absorbed. There is no loss of energy. The energy of reflected ray is same as that of the incident ray. There is loss of energy, so energy is reflected. The energy of reflected ray is always less than that of the incident ray. And the image is much brighter. तो इस वजह से जो हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं they always prefer prism instead of plane mirrors. And the brightness remains unchanged even after long use of the total reflecting device. पर ऐसा मिरर के साथ नहीं होता. With time it becomes rough, it loses its silvering, तो उसके बाद उसको फिर से सिल्वरिंग कराना पड़ता है. Some consequences. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिराज दिखता है अपने को तो जब अगर इफ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हॉट डे, तो ऐसे हाईवे पे ऐसे पानी दिखेगा पर वो एक्चुअल में पानी नहीं रहता, इट इज जस्ट मिराज. या फिर डेजर्ट में ऐसे दिखेगा, तो डेजर्ट में तो इट बिकम्स डेडली बिकॉज वो ऐसे लगता है कि इट इज वाटर. सो डेजर्ट ऑब्वियसली इज वेरी ड्राई, तो पानी की उस वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन द डेजर्ट. सो इफ समवन गेट्स स्ट्रैंडेड then mirage can actually destroy their lives because वो भागते जाएंगे towards this puddle कि भाई पानी है, पानी पी लूँगा, और वो जितना आगे भागेंगे उतना वो मिराज उनसे दूर चला जाएगा. Now next is empty test tube placed in a water. अगर मैं एक empty test tube ले लूँ और एक filled up test tube ले लूँ और दोनों को पानी में डाल दूँ, तो यहाँ तक पानी है, तो जो empty test tube है वो ऐसी सिल्वर कलर की दिखेगी. This is happening because of total internal reflection. Now, crack in a glass, अगर glass crack हो जाता है तो the lines shine out because
because it is undergoing total internal reflection. We have a piece of diamond. So diamond है तो ऐसे चमकता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, and this is happening because of total internal reflection. अब वो हर एक दिशा में चमकता है क्या? तो नहीं, वो कुछ दिशाओं में चमकेगा, only in certain directions. Then फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी. दिस इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द डेटा स्पीड दैट वी हैव करंटली. तो जो डेटा इतनी फास्ट वे से ट्रांसफर हो रहा है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स है. दे आर ट्रांसफरिंग द डेटा विद स्पीड ऑफ लाइट. और जैसे अपन ने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द सिग्नल इज प्रिजर्व्ड, तो सिग्नल डजंट डाई. और सिंस द सिग्नल इज नॉट डाइंग, उसको अपने को ज्यादा रिपीटर्स भी लगाने नहीं पड़ते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई हैव एडेड अ स्मॉल worksheet in the description box. Please go through it. It's going to be a theoretical worksheet. It might not have a lot of numerical examples. However, these theoretical questions are important with the board perspective. So I would like you to check out the worksheet, download it and try to solve it. In case you have any doubts, you can always reach to us on the WhatsApp number given on the screen or just by scanning the QR code. If you found this video interesting, please give it a thumbs up, share it with your friends. It keeps me motivated to make even better videos. If you are new to this channel, please subscribe to our channel so that you get updated with the new content that we are uploading every week. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.